بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم۔ آئیے دین کو سمجھیں، اس عنوان سے آج ہماری گفتگو اور آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دین کیا ہے؟ دین قرآن اور اہل بیت، یہی دین ہے۔ جو قرآن میں ہے اسے سمجھیں، اسے مانیں، اس پر عمل کریں، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، ان کی حدیث میں آیا ہے، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مگر ایک اور چیز کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آئے۔ دیکھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آنکھیں ہونی چاہیے اور لائٹ ہونا چاہیے۔ اندھے کو دن میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور آنکھ والے کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آنکھوں کی بھی ضرورت ہے، لائٹ کی بھی ضرورت ہے۔ لائٹ، نور، یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں ہماری عقل ہے، ایسی عقل جو سلیم ہو، یعنی بیمار نہ ہو، خواہشات سے مغلوب نہ ہو، تعصبات کے زیر اثر نہ ہو، تعصب نہ ہو، اس میں صحیح و سالم عقل ہو، خواہشات سے آزاد عقل۔ جتنا زیادہ عقل ہماری آزاد ہوگی خواہشات سے، اتنا ہی زیادہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھیں گے۔ تو قرآن روشنی ہے، اہل بیت روشنی ہے۔ عقل سلیم یعنی خواہش سے آزاد۔ ماہ مبارک رمضان میں عقل سلیم ہو جاتی ہے اکثر کی، زیادہ تر لوگوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے خواہشات کے اوپر لگام لگا دی جاتی ہے، اس وجہ سے عقل ہماری صحیح و سالم رہتی ہے۔ اور جب عقل صحیح و سالم ہے تو وہ لائٹ یعنی روشنی تو ہے ہی ہے، آنکھیں ہیں، روشنی بھی ہے، روشنی قرآن اور اہل بیت۔ آئیے اسی روشنی کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اہل بیت کو سمجھیں۔ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے سورہ حمد کی شروعات کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ نماز میں جو مشہور سورے پڑھے جاتے ہیں، ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک سورہ حمد ہے جو بہت عظیم سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اس کی گفتگو کر چکا ہوں میں۔ سورہ حمد کے جو فضائل ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اسے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ حدیث بھی میں پیغمبر اسلام کی بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک کرو، پاک رکھو، پاکیزہ رکھو۔ کیوں؟ انہا طرق القرآن، کیونکہ یہیں سے قرآن نکل کر آتا ہے۔ تو جب یہ راستہ پاک اور صاف ہوگا تو یقیناً قرآن اثر کرے گا۔ قرآن شفا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں تفسیر، وضاحت آیت کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو سورہ حمد ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے جلسے میں پہلی نشست میں، پہلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب آج سورہ حمد، اس کی
थोड़ी सी तफसीर मैं बयान करना चाहता हूँ, इसके माने पर थोड़ा सा गौर करें। सबसे पहले इसमें लफ्ज़ हम्द आया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक आयत है। हम्द के माना क्या है जो हम्द कह रहे हैं, इस हम्द के ऊपर एक अलिफ लाम दाखिल है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। ये जो लफ्ज़ अलिफ लाम आया है हम्द के ऊपर, उलमा ने कहा इस्तग़राक़ है, यानी इसको समझिए ये अलिफ लाम कुल की जगह है, लफ्ज़ कुल, यानी कुल्लो हम्दिन, हर तरह की हम्द, जिसका तर्जुमा आसान तर्जुमा इस तरह से किया गया, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का परवरदिगार है। ये सारी तारीफ़ उसी अलिफ लाम के ज़रिए से आई, अल्हम्दु। इस हम्द के माने क्या हैं, हम तो किसे कहते हैं? देखिए, एक लफ्ज़ है हम्द, एक मदह, एक शुक्र। मदह यानी तारीफ, हम्द यानी तारीफ, मगर हम्द और मदह में फ़र्क है, हम्द और शुक्र में थोड़ा सा फ़र्क है। मदह यानी तारीफ, आपको जो चीज़ पसंद आती है आप उसकी तारीफ करते हैं। हो सकता है कि जिस चीज़ की आप तारीफ कर रहे हैं वो खुसूसियत उस चीज़ में खुद ब खुद आ गई हो, उसमें उसका कोई दखल ना हो, उसका कोई इख्तियार ना हो। मसलन आपने मौसम की तारीफ की, वाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा मौसम है। अब मौसम इतना अच्छा है, मौसम इतना हसीन है, तो मौसम ने अपने आप को हसीन नहीं बनाया है, उसमें उसका कोई दखल नहीं है, कुदरत ने, फितरत ने उसे हसीन बनाया है। तो इसे मदह कहेंगे, हम्द नहीं कहेंगे। हम्द उस तारीफ को कहेंगे इंसान की से या किसी से कोई ऐसी सिफत जाहिर हो, सिफत कमाल, सिफत जलाल, कोई भी अच्छी सिफत जाहिर हो जो उसके इरादो अख्तियार से जाहिर हो, उसे हम्द कहेंगे। किसी का कलाम अच्छा हुआ, आपने तारीफ की, यह हम्द कहलाएगा। शुक्र, ये नेमत के ऊपर किया जाता है, जो नेमत दे उसके ऊपर शुक्र अदा किया जाता है। अब यहाँ के ऊपर देखें जो अल्लाह की हम्द है वो क्या है, मदह और शुक्र, इन्हीं दोनों से मिलकर परवरदिगार की हम्द तैयार हुई है, आमादा हुई है। वो किस तरीके से, ये इंसान की फितरत है। माह मुबारक रमज़ान है, फर्ज करें कि कोई आपके घर में एक पैकेट दे जाए इफ्तारी का, उसमें सामान, खजूर भी हो, उसमें फल भी हो और भी दीगर चीज़ें हों। घंटी बजाई, दे के चला गया, लड़के ने लेके रख लिया घर में। माँ बाप पूछेंगे बेटा कौन दे गया, नहीं पता कौन दे गया। नहीं, तुम्हें पूछना चाहिए ये किसने दिया, क्यों। ये देखिए इंसान की फितरत है, क्यों मालूम होना चाहिए भाई। फल खाने से मतलब पेड़ गिनने से क्या, किसने भेजा, लेकिन नहीं, अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं मालूम तो होना चाहिए कौन हमारा मोहसिन है, किसने भेजा है, किसने इस मोहब्बत का इजहार किया, ये तो पता होना चाहिए। भाई आप क्या करेंगे, मालूम हो जाएगा। भाई कम से कम फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर देंगे। तो अगर कोई एहसान करे, अगर कोई नेकी करे, तो इंसान की फितरत तकाजा करती है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। एक पैकेट अगर कोई हदिया दे दे तो इंसान जुस्तजू करता है, तलाश करता है कौन है भेजने वाला, ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। कितनी नेमतें उसने हमें दे रखी हैं, कितनी नेमतों से नवाज रखा है उसने। अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, तो क्या उसका शुक्रिया नहीं अदा किया जाए। फर्ज है, फितरत कहती है तुम उसका शुक्रिया अदा करो। हम्द क्या है, हम्द अल्लाह का एक शुक्र है, उसकी नेमतों का शुक्र है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ने जो बेइंतहा नेमतें दे रखी हैं, हम उसकी बेइंतहा नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम्द शुक्र के माने में है। इस हवाले से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, और
इस हदीस पर थोड़ा सा आप गौर करें। तफसीर नूरुस सकलैन में यह हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 15 में। तो बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प हदीस है, और इसे आप गौर से सुनिए और इंशाअल्लाह इसके ऊपर आप अमल भी कीजिए तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। छठे इमाम आए, मैं पूरी हदीस आपको पढ़ दूँ, आपके लिए पढ़ दूँ। इमाम ने फरमाया कि आप जब आए, बाहर निकले तो आपका जो सवारी थी, आपका जो घोड़ा था, जो भी था बहरहाल वो खो गया। जिस तरह से आप गाड़ी से आए और गाड़ी कहीं पार्क करें और दोबारा पार्क में आए तो गाड़ी आपको ना मिले, वही हाल हुआ कि इमाम की सवारी लापता हो गई, खो गई। उस पर इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया लइन रद्दल्लाहु अलैया, अगर अल्लाह ने हमारी सवारी को वापिस कर दिया, लाशकुरन्ना अल्लाह हक़्क़ा शुक्र, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। हक का शुक्र है, जो शुक्र करने का हक होगा वो मैं अदा कर दूंगा। ये इमाम ने दुआ पढ़ी। काला, रावी कहता फमा लबैसा अन ऊतिया बेहा, थोड़ी देर में जो है वो सवारी आ गई इमाम के पास। जब सवारी इमाम के पास आ गई, अब लोग देख रहे हैं कि जोर से कहा था ना छठे इमाम ने कि अगर ये सवारी हमें मिल जाएगी तो हम हक के शुक्र अदा करेंगे। अब लोग मुंतजिर देखें कैसे हक के शुक्र अदा होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़क़ाल क़ाइलुन, तो कहने वाले ने कहा जुइलतु फ़िदाका, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान। अलैसा क़ुल्ता लाअशकुरन्नल्लाह हक़्क़ा शुक्र, कि आपने नहीं कहा कि अगर सवारी मिल गई तो अल्लाह का हक के शुक्र अदा करेंगे? तो उस पर इमाम फरमाते फ़क़ाल अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अलम यस्मानी अलम तस्मानी, क्या तुमने नहीं सुना? क़ुल्तु अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यानी अगर कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जिसका मकसद है कि अल्लाह की नेमत का वो शुक्र अदा कर रहा है और अल्लाह उसे कबूल भी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कितना कीमती जुमला है। ये अल्हम्दु जो छोटा सा जुमला है, ये कई सूरों में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनाम में भी आया है। इसके अलावा तकरीबन जो मैंने देखा है वो 4 सूरों में ये आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनाम, सूरह कहफ, सूरह सबा और सूरह फातिर, ये 4 सूरों में ये आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन के साथ सिर्फ सूरह हम्द में आया। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके माने पहले इसके असर देख लें, क्या इसका असर है, क्या इसके फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी हदीस है नूरुस सकलैन में, तफसीर नूरुस सकलैन में, उसी सफ़े के ऊपर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 15 पर। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबा मन कुन्ना फ़ीहि काना फ़ी नूरिल्लाह आज़म, 4 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएं वो अल्लाह के नूर के दायरे में चला जाएगा। फ़ी नूरिल्लाह आज़म यानी अल्लाह के नूर, यानी जब अल्लाह के नूर में चला जाएगा तो उसे सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ उसे दिखाई देगा। वो क्या है? करते पैगंबर फरमाते हैं कि मन इज़ा असाबा खैरन काला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनमें से एक सिफत ये, जिस शख्स को कोई खैर पहुंचे, कोई अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी नेमत मिल जाए, कैसी भी हो, दुनियावी हो, आखिरत की हो, लड़का इम्तिहान में पास हो गया, प्रमोशन हो गई, तिजारत में फ़ायदा हो गया, या कोई और भी अच्छी बात वजूद में आ गई, वो नेमत उसे मिल गई, अगर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ इतना कहा, तो जानते हैं क्या, वो कहाँ चला जाएगा? नूर खुदा में चला जाएगा। क्या मकसद नूर खुदा में चला जाएगा? अल्लाह की रोशनी में चला जाएगा। देखिए, जब नेमतें इंसान को मिलती हैं तो लोग नजरें भी तो लग जाती हैं। नजर बद एक हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, बुरी नजरें लग जाती हैं, लेकिन जहां अंधेरा होता है वहां बुरी नजरें लगती हैं। जहां नूर इलाही होता है वहां नजर बद कोई असर नहीं कर सकती। जैसे ही आपको कोई नेमत मिले, आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नूर खुदा में आ जाएंगे, किसी की नजर बद आपके ऊपर असरअंदाज
नहीं होगी। ये है माने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द यानी अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ कर रहा जो आलमीन का पालने वाला है, रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला। अब देखते हैं रब इसके माने क्या है। अल्लाह के माने में बयान कर चुका हूँ। अलहम्द, हम्द के माने, अल के माने कुल के हैं, हम्द के माने तारीफ के हैं, जिसमें शुक्र भी आ गया, मदह भी आ गई। अलहम्द सारी की सारी तारीफें किसके लिए है? लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लाम तमलीक के लिए, मिल्कियत के लिए, यानी हर तारीफ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। सारी तारीफ, आप किसी भी शय की तारीफ करें, मदह करें, हकीकत में वो तारीफ अल्लाह की हो रही है, अल्लाह की मदह हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। एक आलिम के इल्म की तारीफ करें, ये तारीफ अल्लाह की हो रही है। दिमाग उसका बनाया हुआ, जहन उसका बनाया हुआ। जरा से स्क्रू टेढ़ा हो जाए तो बच्चे पत्थर मारने लगेंगे। किसी के हुस्न की तारीफ करे, सूरत उसने बनाई है। युसव्विरु फिल अरहाम कैफा यशा, जैसा चाहता वैसी तुम्हारी सूरत तुम्हारे माँ के पेट में तुम्हारी बना देता है। जो भी आप तारीफ करें, हर तारीफ अल्लाह के लिए है, हर मदह अल्लाह के लिए, हर सना अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के माने अर्ज कर चुका। रब, रब के माने क्या हैं? रब के माने क्या है? रब के माने मालिक के हैं, साहिब के हैं। रब्बुल बैत, घर का मालिक, घर का साहिब, जो मालिकों से रब कहते हैं। मगर इसके साथ साथ एक चीज और इसमें पाई जाती है, वो क्या है? ऐसा मालिक, रब्बुल बैत, ऐसा मालिक जो जिस चीज का मालिक है उसकी तरबियत भी कर रहा है, उसकी नशो नुमा भी कर रहा है, उसे कमाल तक पहुंचा भी रहा है। ये माने रब के, यानी मालिक भी है और मालिक के साथ साथ कमाल तक पहुंचा भी रहा है उस चीज को, उसमें रुश्द भी पैदा कर रहा है। दूसरे लफ्जों में उसे हिदायत के रास्ते को पर भी ला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द अल्लाह के, रब्बिल आलमीन, आलमीन जमा है आलम की। आलम यानी वर्ल्ड, आलमीन यानी बहुत से आलम। कितने आलम है हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते कितने आलम हैं, कितने वर्ल्ड, उनमें मखलूक है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, हदीसों में, बाज़ हदीसों में आया है, लेकिन हमें जन मिलता है उन हदीसों से, यकीन नहीं। क्यों? इस वजह, अगर ये यकीन हो जाए कि यह हदीस इमाम अलैहिस्सलाम से आई है तब तो यकीन ही यकीन है। लेकिन ज़्यादातर हदीसें या तो सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, या अगर सनद है भी उनकी तो खबर वाहिद है जो जन का फ़ायदा देती, यकीन का फ़ायदा नहीं देती। लेकिन आया बहरहाल, इशारा मिल जाएगा आपको कि मखलूक़ात हैं सैयारों में, दूसरे सैयारों में, ऐसी मखलूक़ात उन्हें पता ही नहीं कि उनके अलावा भी कोई मखलूक है। उन्हें पता ही नहीं कि आदम पैदा किए या आदम पैदा नहीं किए। आलम एक नहीं, न जाने कितने आलम हैं, कितने आलम हैं। और ये आलम का सिलसिला ऐसा नहीं परवरदिगार ने बस खल कर दिया, स्टॉप नहीं, बढ़ रहा है। न जाने कितने आलम वजूद में आ रहे हैं। अभी जुमले पर गौर कर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, आलमीन का पालने वाला है। पहला मैसेज क्या है? यानी ये नमाज इसी सूरत से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि पहचानो हम मुसलमान कौन हैं। हम मुसलमान कौन? हम उस रब के मानने वाले हैं, उस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं जो आलमीन का रब है, आलमीन का मालिक है। इसका मकसद ये है कि दुनिया में जो हो रहा है, आलम में जो हो रहा है, उसमें हमारा भी कोई ना कोई हिस्सा है, हमारी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। क्या मकसद रब है? मालिक भी है आलमीन का, मालिक के साथ साथ सबको कमाल की तरफ ले जा रहा है, रुश्द की तरफ ले जा रहा है सबको। हमारा भी रब अल्लाह हमें भी कमाल की तरफ ले जा रहा है। इंसान को परवरदिगार ने क्यों पैदा किया? ताकि वो कमाल तक पहुंचे, सआदत तक पहुंचे। इस वजह से इंसान को पैदा किया गया।
जिसे कहते हैं नजात मिल जाए उसे, वो हमारी रहनुमाई फरमाता है, तुम इस रास्ते पर चलो कमाल तक पहुंच जाओगे, तुम्हें नजात मिल जाएगी। और किसके जरिए नजात मिलेगी? किसके जरिए परवरदिगार ने रहनुमाई की? अंबिया के जरिए, आइम्मा के जरिए। कुरान भेजा, किताबें भेजी, सहाय भेजे जाकर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की, सारी तारीफें उस अल्लाह के आलमीन का, अपना परवरदिगार। अच्छा देखिए, अब यहां ऊपर एक सवाल का जवाब दिया गया, वो क्या? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हम्द अल्लाह के लिए। जब हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हम्द अल्लाह के लिए, जवाब आता है, सवाल ज़हन में उठता, क्यों सारी हम्द अल्लाह के लिए? किस वजह से हम सारी तारीफ अल्लाह की करें? कोई दलील तो होना चाहिए, कोई बुरहान तो होना चाहिए। तो उसका जवाब क्या है? रब्बिल आलमीन, इस वजह से सारी तारीफ अल्लाह के लिए कि तमाम आलमीन का वो रब है, मालिक है, सबको कमाल तक पहुंचा रहा है, सबका मुहाफिज है। देखिए, एक शख्स होता मालिक, एक होता मालिक के साथ साथ मुहाफिज भी। बाग का मालिक भी है, बाग का मुहाफिज भी है। एक लम्हे के लिए भी अगर वो गाफिल हो जाए तो पूरी कायनात खत्म हो जाए। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है। जनाब मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार क्या तू कभी सोता है? क्या कभी आराम करता है? थकता नहीं है? आवाज़ है, मूसा एक आईना लेकर खड़े हो जाओ, सोना नहीं रात में। आईना लेके खड़े हो गए। कहा मूसा हरगिज़ नहीं सोना। नहीं सोए? कब तक नहीं सोएंगे? बशर थे, इंसान थे, बशरी तकाजे थे। ऊँघ आ गई, हाथ से आईना गिरा, टूट गया, फौरन आँख खुल गई। कहा मूसा कुछ देर के लिए तुम्हारी आँख लग गई, एक आईना तुमसे संभल न सका, चकनाचूर हो गया। अगर मैं सो जाऊं, मुझे ऊँघ आ जाए तो कायनात खत्म हो जाएगी। आयतल कुर्सी में ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना वो सोता है। कभी भी उसे पुकारो वो सुनता है, किसी वक्त उसे पुकारो वो सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। अच्छा, अब यहाँ ऊपर रोके, देखिए आलमीन का परवरदिगार कौन? रब, अल्लाह है, वो आलमीन का रब है, परवरदिगार है। अपना तारुफ ऐसे ही करा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर खुदा ये सूरा नाजिल ना करता तो बंदों को ये भी पता नहीं चलता कैसे उसकी हम्द की जाए, कैसे उसकी सना की जाए, कैसे उसकी तारीफ की जाए। उसने बताया ऐसे हमारी हम्द करो, ऐसे हमारी सना करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने लिए इस जुमले का इंतखाब किया। रब वह रब्बु कुल्लि शै, हर शय का वो रब है। कुल्ल शै, हर शय का रब है। सूरह अनाम में कहा वह हर शय का रब है, परवरदिगार हर शय का रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, आलमीन का रब है। अच्छा, अब आलमीन को रुश्द देना यानी कमाल तक पहुंचाना है, उनको हिदायत देना है। तो ऐसे ही नहीं उनको हिदायत मिल जाएगी। एक हिदायत का एक सिस्टम बनाया परवरदिगार ने, एक निज़ाम बनाया परवरदिगार ने, किसी के ज़रिए से हिदायत दी। जिसके ज़रिए से हिदायत दी उसे रसूल कहते हैं। अब रसूल के लिए क्या जुमला इरशाद फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे हबीब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सिर्फ इस वजह से कि आलमीन के लिए आप रहमत। अपने लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, परवरदिगार है, पालने वाला है। नबी के लिए क्या कहा? कि आलमीन के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मकसद ये कि सिर्फ इस दुनिया के नबी नहीं है, ये और भी आलम है, वो उसके भी ये नबी हैं। पैगंबर की हदीस मशहूर है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला भी आमादा नहीं हुआ था, उनका पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए वो बेशक रब है, परवरदिगार है, आलमीन का परवरदिगार है,
तमाम कायनात का परवरदिगार है। नबी हमारा सबके लिए रहमत बनकर आया। तो हमें कैसा होना चाहिए? हम सबके साथ रहम से पेश आए, क्योंकि हम उस रब की इबादत करते हैं जो आलमीन का परवरदिगार, आलमीन का मालिक है। उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है। तो हमें भी सबके लिए जीना चाहिए, सबके साथ मेहरबानी करना चाहिए, सबके साथ रहम से पेश आना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी मखलूक़ात हैं सब अल्लाह की हैं। जब हर मखलूक अल्लाह की है तो हम अगर अल्लाह के बंदे हैं तो उसकी मखलूक का ख्याल रखें। नबी सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। जब नबी सबके लिए रहमत बनकर आए हैं तो हम कहाँ तक नबी के रास्ते पर चल रहे हैं? खुदा ना करे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसी काम से, मुसलमान के किसी काम से किसी को तकलीफ पहुंच रही हो और कोई समझ रहा है कि हमारे लिए बाइस ज़हमत है। नहीं, पूरी दुनिया के लिए तुम, पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए तुम रहम का पैगाम दो, रहम का मैसेज दो, ये कह के हम उस रब की इबादत करते हैं जो सबका रब है, और उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो सबके नबी बनकर आए हैं, आलमीन के लिए नबी बने हैं, रहमत बनकर आए। जो माने उसके लिए भी नबी हैं, जो ना माने उसके लिए भी नबी। जिस तरह से अल्लाह, जो अल्लाह को माने अल्लाह उसका भी खुदा है, उसका भी रब है, जो ना माने अल्लाह उसका भी रब और खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है, आलमीन का पालने वाला है, आलमीन का मालिक है, आलमीन की मखलूक़ात को कमाल तक पहुँचाने वाला है, आलमीन की मखलूक़ात का मुहाफ़िज़ और निगहबान है, आलमीन की मखलूक़ात को हिदायत देने वाला है। उसी अल्लाह की हम्द है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बकिया आयात उनकी तफसीर में आपके सामने पेश करूँगा। आइए दीन को समझें। दीन को कैसे हम समझ सकते हैं? दीन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को समझें, हम अहले बैत की हदीस को समझें, मगर अक्ल हमारी सही हो, ख्वाहिशात से, तासुबात से, जहालत से आज़ाद हो। जितना हमारी अक्ल, ख्वाहिश और तासुब से आज़ाद होगी उतने ही ज़्यादा हम कुरान और अहले बैत को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकेंगे। आइए दीन को समझें, आइए अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पहुँचें, उन्हें राज़ी करें, उनकी दुआएं लें। अगर उनकी दुआएं शामिल हाल हो गई तो यकीनन दीन हमारी समझ में आ जाएगा। इमाम हमारे हर अच्छे काम से राज़ी और खुशनूद होते हैं, आज़ादारी से भी राज़ी और खुशनूद होते हैं। उलमा कहते हैं अगर इमाम को राज़ी करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो तो इमाम के गम में तुम शरीक हो जाओ, इमाम तुमसे राज़ी हो जाएंगे। हम और आप उस वक्त गिरिया करते हैं, उस वक्त रोते हैं जब मसाइब करबला सुनते हैं या पढ़ते हैं। इस ज़माने के इमाम को मसाइब करबला दिखाए जाते हैं। मुसलसल मैं ज़ियारत नाहिया के सलाम पढ़ रहा हूँ। ज़ियारत नाहिया वो ज़ियारत है इमाम हुसैन की ज़ियारत, इमाम ज़माना की बताई हुई कैसे सलाम किया है ज़माने के इमाम हुज्जत खुदा ने करबला वालों के ऊपर, किस तरीके से सलाम किया। रोज़ाना एक सलाम मैं पढ़ रहा हूँ। आइए आज उस सलाम की तरफ आए। अजीब व गरीब सलाम है कि ज़माने का इमाम करबला वालों पर सलाम कर रहा है। किस तरह से? अस्सलामु अला दमाइस साइलात, हमारा सलाम उन खूनों पर जो करबला की ज़मीन पर बह रहे थे। मुझे नहीं पता कि इमाम ने किस खून के ऊपर सलाम किया। करबला में कोई एक खून तो नहीं बहा, तो जाने कितने खून बहे हैं। करबला में अली अकबर का भी खून बहा है, उसके ऊपर भी सलाम कर रहे हैं। करबला में कासिम का भी खून बहा है, उसके ऊपर भी सलाम कर रहे हैं। करबला में अब्बास का भी खून बहा है, उसके ऊपर भी सलाम कर रहे हैं। और करबला में वो खून बहा है कि जिसकी मजलूमियत ऐसी है, जिसने हर इमाम को रुलाया है। वो किसका खून? वो कमसिन बच्चे का खून, शीर ख्वार का खून। रवायत में मिलता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर में मजलिस हो रही है।
पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे खवातीन बैठी हुई हैं, मरसिया पढ़ रहे, इमाम रो रहे हैं, अली असगर का जिक्र आता, नागा पर्दा उठता है, एक कनीज पर्दे से बाहर आती है, उसके हाथ में कमसिन बच्चा है, उस बच्चे को कनीज छठे इमाम की आगोश में डाल देती है। इमाम जैसे उसे देखते बेसाख्ता गिरिया करने लगते, आवाज़ बुलंद। क्या है? उस बच्चे को लाई ताकि याद आ जाए, एक शबी है, किसकी याद आ जाए? छठे इमाम के आगोश में कमसिन बच्चा आया, छठे इमाम को क्या याद आया? अली असगर याद आ गए, जब बाबा की आगोश में थे। इमाम सलाम कर रहे, हमारा सलाम हो बहते हुए खून पर। मैंने एक रवायत पढ़ी है, उलमा ने उसे नकल किया अपनी किताबों में, मसाहिब अहले बैत में ये रवायत है कि इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो करबला आएंगे, आने के बाद सलाम करेंगे, अस्सलाम अलैका या जद्दा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे जद आप पर मेरा सलाम हो, ए अबा अब्दुल्लाह आप पर मेरा सलाम हो। जवाब आएगा अलैका सलाम या वलदी, अलैका सलाम या महदी, ए मेरे फरजान तुम पर भी सलाम हो, ए महदी तुम पर भी सलाम हो। अब इसके बाद इमाम अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे, इमाम के हाथों पर कुछ आएगा। क्या आएगा ज़ादारो? क्या अली अकबर का जख्मी सीना आएगा? अब्बास के कटे हुए हाथ आएंगे? हुसैन का लाशा जो घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका, ये आएगा? नहीं, इमाम के हाथों पर एक शीर ख्वार का जख्मी जिस्म, जिसका गला तीर से छिदा हुआ होगा, इमाम अली असगर के जनाजे को अपने हाथों पर लेंगे, असहाब की तरफ रुख करेंगे, एक जुमला कहेंगे, फमा ज़ंबो हाज़र रज़ी, अरे शीर ख्वार का क्या गुनाह था, इस बच्चे ने क्या गुनाह किया था, इसे किस जुर्म की सजा दी गई। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हम में से जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, हम सब की मुसीबतों को दूर फरमा। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से परवरदिगार जो भी परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो अपने वतन से दूर हैं परवरदिगार सही व सालिम उनके वतन वापस, मज़दूरों को काम करने वालों की मदद और नुसरत फरमा। और जो लोग मज़दूरों की और गरीबों की मदद कर रहे हैं परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार ज़हूर इमाम ज़ौम में ताजील फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। मेरे अल्लाह उस आलम में मौत आए जब हम तेरी इताअत में हो, उस आलम में मौत ना आए जब हम तेरी मासियत में हो। ज़हूर इमाम ज़ौम में ताजील फरमा, हमें इतनी तौफ़ीक़ दे हम अपने इमाम को पहचान सकें, उनकी इताअत कर सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत फरमा कर जुमला मुमिनीन व मुमिनात, खासकर अपने अज़ा और क़ुरबा रिश्तेदार, बिलख़स अगर वालिदैन दुनिया से गुजर चुके उनकी रूह के लिए साले सवाब फरमा दे।